class we studied how DNA is packed. So I wanted to teach you the last part, but yesterday the class got over because it has a specific timing. So the last part of the yesterday's class, packaging of the DNA. Am I audible to all? Reply me once. Am I audible to all? Yes? Okay. Now, yesterday we understood that DNA is wrapped around the histone protein. I'll show it here. This is the histone, remember? And this is the DNA. This is the DNA. And here is the H1. So which is clipped. So this is nucleosome. Remember, from here to here, this DNA is core DNA. Now, this DNA is linker DNA. This one is H1 and this one is histone octamer. Now, this core DNA is 146 base pairs. This linker DNA is around 54 base pairs. Together, 200 base pair of DNA is wrapped wrapped around core. Now remember, this nucleosome is core histone DNA plus H1. So core histone, core DNA plus H1. We already studied this. Remember, now it has a width of 10 nanometer. It has a length of 6 nanometer. Am I right? I hope it's visible. I hope it's visible. Is it visible and audible? Reply me. Yes. Now, so yesterday till this we finished. Now, like this, many nucleosomes get connected. Like this, there are many nucleosomes get connected. Like this. So like this, many nucleosomes get connected and forms, remember, nucleosome fiber. Nucleosome fiber. So in this is linker DNA, right? LDNA. This one is core DNA, right? cDNA. Short में लिख रहा.
and this one is histone core, and this entire thing is called as nucleosome fiber. And the width of the nucleosome fiber is again 10 nanometer. This is called as second level of coiling. ये second level coiling है. तो first level coiling कौन हुआ? Nucleosome. Second level coiling कौन हुआ? Nucleosome fiber. तो देखो DNA सिर्फ पार्ट होता जा रहा है. Then the third level of coiling. Third level of coiling. Yeah. See. अरे न्यूक्लियोसोम फाइबर फिर से कॉइल होगा, फिर से पैक होगा, और ये सोलेनॉइड. रिमेंबर क्रोमैटिड, सोलेनॉइड क्रोमैटिन. तो ये थर्ड लेवल ऑफ कॉइलिंग. दिस इज थर्ड लेवल ऑफ कॉइलिंग. अब इसका जो डायमीटर है 300 nanometer. This is 300 nanometer. Now, fourth level of coiling also takes place. मैं बोर्ड को थोड़ा इस तरफ घुमा रहा हूं so that you can see it. Or else I'll rub this and I'll draw it here. Can I draw it on the right side? I'll rub. There is no space. आपको उसके आगे ड्रॉ करना है. Is it okay? ठीक है. Now, मैं यही ड्रॉ करता हूँ एक केवल. Now, fourth level of coiling. Fourth level of coiling देखो कैसे होता है. तो ये first level, second level, third level, और fourth level is right here. Fourth level of coiling. Now, fourth level of coiling में क्या होगा? Now see. Now this solenoid coil chromatin again get coiled. Remember, again get coiled, and this is called as super solenoid chromatin. और इसका जो diameter होगा, remember the width जो है इसका is 800 nanometer. This is super solid. Now the fifth level of coiling. Fifth level of coiling. Now this is called as chromatid. Remember, this is a tin, this is a tin. Chromatid.
और इसका जो रिमेंबर सॉरी this is 10, this is 30 nanometer, this is 300 nanometer. ठीक है. Now this is chromatic, नीचे जाओ. Now this is chromatic and chromatic का जो width है वो होगा 700 nanometer. And final sixth level of point. Finally, it forms metaphase chromosome. This is the sixth level of coiling. और इसका जो diameter है, it is 1400 nanometer. Now this is chromosome. You see here, DNA का coiling होता जा रहा है. First level of coiling is nucleosome. Second level, nucleosome fiber. Third level, solenoid chromatin, EIN. Fourth is super solenoid chromatin. Fifth is chromatid, EID. And finally, again DNA coil and forms a chromosome. And these chromosomes are able to fit inside the nucleus. Now, this third level, fourth level, fifth level, sixth level. So 1, 2, 3, 4. This level of coiling, requires some special proteins. So, I'll just. Is there any problem to understand this? If you have any doubt, let me know. If you have any doubt, let me know. Yeah, histone diameter is also 10 nanometer and the nucleosome fiber diameter is also 10 nanometer. Then solenoid is 30, super solenoid is 300, chromatid is 700 and chromosome is 1400. Histone is spherical, yes. Any doubts? Anybody else? Lovedale students? Lovedale College students? Jagdish, no doubts, sir. Anybody else? From Good Shepherd? Preeti, no doubts. ठीक है. तो shall I rub it? Can I wipe the board? Yes. आपने उसका I hope एक पेज पर उसका डायग्राम बना दिया है. Now see, how many types of coiling? Don't write, just look at the board. First comes nucleosome. Then comes nucleosome fiber. Number 8. Then comes solenoid chromatin. Then comes super solenoid chromatin. Then comes chromatid. Then comes chromosome. Right? So these are the level of coiling. Now remember, this is the first level. This is the second level. This first and second level coiling. First and second level coiling requires histone.
requires histones. Now, this is third, this is fourth, this is fifth, and this is sixth. So these level of oiling, higher level of oiling requires some additional, some special proteins called NHC proteins. NHC proteins. Now, NHC का full form है non-histone chromosomal protein. Non-histone chromosomal proteins. So this is what packaging of the DNA. One of the important 5-mark question with all the explanation diagram, or if they ask you diagram, then it's a 3-mark question. So I hope you understood. This is the normal level of oiling. This is higher level of oiling. Normal level of oiling requires histone, and higher level of oiling requires non-histone chromosomal proteins. If you have any doubts, text message me. Have any doubts? Let me know. कुछ doubts है तो पूछिए. I'll clarify. There is any doubt? Let me know. DNA will break if 1 second. मुझे पूरा कमेंट नहीं समझ में आया. कहाँ से देखना है? आदिल. नहीं, I don't know how to read the chat. Anybody else? Any doubts? No doubts? No problems? अब हमने क्या देखा कि डीएनए पैक हुआ है, राइट? डीएनए पैक हुआ है मतलब रैप हो रहा है. फर्स्ट लेवल कॉइल होगा, दूसरा लेवल पैकिंग होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ लेवल पैकिंग होकर क्रोमोसोम बनाएगा. एंड क्रोमोसोम जो है किसमें फिट हुए हैं? न्यूक्लियोसोम में फिट, सॉरी न्यूक्लियस में फिट हुआ है ना. अभी जो पैकेजिंग है, कॉइलिंग है, तो डिपेंडिंग ऑन द पैकेजिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजिंग. रिमेंबर, so headline, types of chromatin. Types of chromatin. Based on packaging of DNA. Based on packaging of DNA. Two types of chromatin based on packaging of DNA. Now, what are these two types? Now, one is euchromatin. Another one is heterochromatin. Euchromatin and heterochromatin. जल्दी से लिख लेना क्योंकि very important 2-mark question.
वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन, ऑलरेडी आज क्वेश्चन है। हो गया ना? अभी जो कॉइलिंग है उसके ऊपर बात हो रही है। अभी जो यूक्रोमैटिन है ये लूजली पैक है, यानी इसका कॉइलिंग बहुत सॉफ्ट हुआ है। रिमेंबर, तो लूजली पैक, जैसे हम देखे हैं पतंग उड़ाने का जो थ्रेड है, धागा है, अगर मैं टाइट पैक करता हूं तो बहुत टाइट पैक हो सकता है, लेकिन ये जो है यूक्रोमैटिन जो है ये लूजली पैक है। रिमेंबर, और जब हम इसको स्टेन करेंगे यानी कलर करेंगे, 11th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल्स में किया है, ईयर्स ऑफ द स्टैंड लेकर उसको स्टेन किया था, कलर किया था, याद है? तो सेम वे अगर मैं यूक्रोमैटिन को स्टेन करता हूं तो लाइटली स्टेन, लाइटली स्टेन होगा। रिमेंबर, और इसमें थर्ड डिफरेंस है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन? यूक्रोमैटिन। ना हेटेरोक्रोमैटिक ये कैसा है? पहले से ये टाइटली पैक है, इसका पैकेजिंग बहुत टाइट हुआ है। दूसरा, जब भी चेंज करोगे डार्क स्टेन्ड, डार्क कलर में स्टेन होगा, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं है। ट्रांसक्रिप्शनली नॉट, ये एक्टिव नहीं है ट्रांसक्रिप्शनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। Ask me if there is any doubt. Ask me if there is any doubt. If there is any doubt, let me know. Yeah, what is transcriptionally active बताता हूँ। Transcriptionally active का मीनिंग क्या है? Just explain it. First you write on this, वो मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए टाइटली भी पैक है और लूज भी पैक है, ठीक है? स्टेनिंग का मतलब कलरिंग, जैसे हमने PU1 प्रैक्टिकल्स में किया था, पीएस ऑफ द स्टेम लिया था, स्टोमेटा लिया था, देन वी स्टेन्ड इट, एम आई राइट? हमने उसको स्टेन किया था प्रैक्टिकल्स में 11th स्टैंडर्ड में, स्टोमेटा टीएस ऑफ स्टेम को। वैसे यहाँ हम डीएनए को जब क्रोमैटिन को स्टेन करेंगे, क्रोमैटिन का मतलब जो कौन है? डीएनए ना। तो जब मैं डीएनए को स्टेन करूंगा तो कुछ डीएनए लाइट स्टेन होगा और कुछ डीएनए डार्क कलर में स्टेन होगा। Am I clear to all? Am I clear to all? And one more thing, इसका वीडियो मैंने आई हैव मेरे YouTube चैनल पर है, ठीक है? बट नीट लेवल पर है, दिस इज ओनली PUC लेवल आई एम टीचिंग यू। कुछ डाउट्स है? एनी डाउट्स? एनी प्रॉब्लम? रिप्लाई में जल्दी से। नो डाउट। अब एक क्वेश्चन था, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव? नाउ यू अंडरस्टैंड समथिंग। ये है डीएनए और हमें मालूम है डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारे बॉडी में कोई चीज है तो वो है हमारा डीएनए।
ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो डीएनए से आप डीएनए बना सकते हो, डीएनए को यूज कर आप दूसरा डीएनए बना सकते हो। इस प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रेप्लिकेशन। ये एक पॉइंट है। डीएनए से आप आरएनए बना, डीएनए से आप आरएनए बना, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर आप आगे बढ़ाओगे प्रोटीन्स। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। Am I clear to all? क्या सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? डीएनए से अगर आप डीएनए बनाते हो तो रेप्लिकेशन, डीएनए से अगर आप आरएनए बनाते हो तो ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से आप बनाओगे प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। Am I clear to all? Reply me fast. Good Shepherd students, Lovedale students, keep replying me. If you don't understand, there is no point of teaching this all. अगर समझ में आता है तो ही हाँ बोलना, नहीं आता है तो just text message me. I'll be reading and explaining it one more time. Lovedale students, Preeti, no problem. No doubts. ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान देना। डीएनए से अगर डीएनए बनाओगे दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन एंड द एंजाइम रिस्पांसिबल इज डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3। From DNA you can synthesize RNA and the enzyme responsible is RNA polymerase. मैं शॉर्ट में लिखा RNA polymerase. And from RNA you synthesize proteins who are responsible. Can anybody text message me the answer? RNA से प्रोटीन कौन बनाता है? Anybody? Anyone? आरएनए से प्रोटीन कौन बनाता है? डीएनए से डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए से आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए से प्रोटीन कौन बनाता है? क्वेश्चन इज दिस, रिप्लाई मी फास्ट। प्रोटीनेज। एनीबडी एल्स? एनीबडी फ्रॉम GSU, Lovedale, anyone? Anyone? किसी को नहीं मालूम? सच में? Really horrible. tRNA? No. Wrong. mRNA? No. Anybody from Lovedale? Yes. Who are the protein factories of the cell? Protein factories कौन है cell के? Protein factories are ribosomes. Why they are called as protein factories? Because they synthesize proteins. तो ट्रांसलेशन किसका काम है? राइबोसोम। अच्छा, now understand something. डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। और जब मैं बोलूं यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब यूक्रोमैटिन यानी डीएनए, उस डीएनए से आरएनए बनता है, उस डीएनए से आरएनए बनता है।
दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जब डीएनए के आरएनए नहीं बनता, then it is called as transcriptionally inactive. So I hope you understood. Euchromatin transcriptionally active, heterochromatin transcriptionally inactive. कुछ डाउट तो पूछिए। I hope I have cleared the doubt. Alim. Clear? Anybody else have anybody doubt? This is one of the important concepts for your PU board exams. No doubts? No problems? जो हमारे बॉडी में डीएनए है वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? डीएनए बन सकता है। डीएनए से हम डीएनए बना सकते हैं। डीएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। और एंजाइम कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए पॉलीमरेज 3 1 2 3। डीएनए से आरएनए बनाते हो, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आरएनए पॉलीमरेज। आप आरएनए से प्रोटीन बनाते हो फिर आगे, और उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड। यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मींस यूक्रोमैटिन में जो डीएनए है उस डीएनए से आप आरएनए बना सकते हो, और आरएनए बना तो 100% प्रोटीन भी बनेगा। हेटेरोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब हेटेरोक्रोमैटिन में जो डीएनए है उससे आप आरएनए नहीं बना सकते, और जब आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन तो बनेगा नहीं। तो ये उसका मीनिंग है। हाँ, एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, सर यूक्रोमैटिन इज एक्टिव, हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव, व्हाई इट इज लाइक दैट? ऐसा क्यों है? क्योंकि यूक्रोमैटिन लूज पैक है और हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली पैक है। टाइट पैक होने की वजह से हम उससे आरएनए नहीं बना सकते। We cannot synthesize RNA from heterochromatin because it is tightly packed. Am I clear to all? Am I clear to all? उस्मा क्लियर हुआ? उस्मा एक्स्ट्रा क्लियर? ठीक है ना। ना हमने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर, हमने देखा डीएनए कैसे पैक हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, किस तरह से उसकी कॉइलिंग हुई है ना, कंडेंसेशन हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडलाइन, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। नॉर्मली हमारे सेल में 3 चीजें होती हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। नॉर्मली हमारे बॉडी में या हमारे सेल में 3 चीजें होती है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। अब क्वेश्चन है, इन 3 में से जेनेटिक मटेरियल कौन है? हु इज द जेनेटिक मटेरियल? रिमेंबर, जेनेटिक मटेरियल। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? ऐसा मटेरियल जो हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करता है, हमारे इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करता है। 11th स्टैंडर्ड में हमने जेनेटिक्स पढ़ा है ना? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन 1945 से पहले किसी को मालूम नहीं था
कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, मालूम नहीं। तो उन्होंने कैसे ढूंढा, हाउ दे डिस्कवर्ड हु इज द जेनेटिक मटेरियल, आज वो हम याद देख रहे हैं। मेरा बेसिक क्लियर है, आइडिया क्लियर है? आइडिया क्लियर हुआ? ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कौन है हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे, that is called as first experiment conducted by Griffith transformation experiment। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ कंडक्टेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर हु इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन है, ठीक है ना। ये जो ग्रिफिथ है, he conducted experiment on mice and Streptococcus pneumonia। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। सो इसने माइस यानी रैट और एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। Am I clear to all? I hope it's visible. Is it visible? Streptococcus pneumonia and mice, इन दोनों के ऊपर उसने ये किया है। ठीक ना, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। This Streptococcus pneumonia has two strains। इसके अंदर दो स्ट्रेन्स हैं, या फिर बोलो दो वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया, टू स्ट्रेन्स और टू वैरायटीज। ना एक का नाम है आर स्ट्रेन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। सो इसमें दो वैरायटीज हैं। हम पहले इनके बीच में का डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस? R strain and S strain, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। ये जो R strain है, रिमेंबर इट इज एवाइलेंट, मतलब नॉन पैथोजेनिक। मतलब जब भी ये किसी के बॉडी में जाएगा तो किसी तरह की बीमारी नहीं लाएगा। इट विल नॉट कॉज डिसीज। लेकिन ये यस्ट्रे है, इट इज वायलेंट, मतलब पैथोजेनिक। क्योंकि जब ये बॉडी में जाएगा किसी के, बिकॉज it causes pneumonia। ये निमोनिया लाता है, तो ये बीमारी लाने है, इससे कोई बीमारी नहीं आती। सिंपल आइडिया है, नॉन पैथोजेनिक, डू नॉट कॉज एनी डिसीज। अब ये जो स्ट्रेन है अराउंड द आर स्ट्रेन, अच्छा, am I clear this? कुछ डाउट है इसमें समझने के लिए?
कुछ डाउट्स है? नो, ठीक है ना, पहले इसको देखते हैं। अराउंड द एस ट्रेन, around the S train, a capsular covering, is present. मैं दिखा रहा हूं आपको। This is the bacteria. This is the bacteria. ये है उसका डीएनए और इसके ऊपर आसपास इधर कलर, अब देखो इस बैक्टीरिया के पास एक कवरिंग है लाइक दिस,